देखो मैं आपकी सेटल करवा देती हूँ। सभी लोग कैसे करते हैं कि जो मिनिमम पेमेंट होती है वो माइनस नहीं होती, ये तो आपको ये तो हो गया करना के कहने के हिसाब से मैं नहीं कर पाया। लीगल प्रोसेस का भी ना कोई टाइम होता है, किसी पर्सन के साथ होता है, ऐसे थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। कुमार जी गल कर रही हूँ। कौन बोले मैडम? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी सर, मैं SBI क्रेडिट एज सुपरवाइजर गल कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, अपनी ना पेमेंट सीगी क्रेडिट कार्ड दी। SBI बोल रहे हो? हाँ जी सर, SBI तो गल कर रही हूँ जी। बैंक से बोल रहे हो थर्ड पार्टी से? है जी, बैंक से बोल रहे हो थर्ड पार्टी से? नहीं सर, मैं ना लीगल तो एक्चुअली गल कर रही हूँ, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ना लीगल प्रोसेस आया होया है। जी बोलिए। हाँ जी सर, देखो एक तो अपना हैगा है कि देखो आप रिसेंटली 5-6 मंथ तो पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है जी। ते दूजी गल देखो मैं 6 मंथ नहीं मैडम, 4 महीने में है। हाँ जी देखो थोड़ी 5 CD है सर मेरे कोले। अच्छा हाँ जी, ठीक है जी, 4 ਅੱਜ महीने ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। हाँ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ EMI ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ RE ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ RE ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ EMI ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਸਟਮਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। जी मैडम तुझे सारी बात बोलो फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 1,47,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਜੂ, ਜਨਵਰੀ ਲੰਘ ਜੂ, ਮਾਰਚ ਲੰਘ ਜੂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। 1,47,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ RE ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, EMI ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ, ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਇਹ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 50,000 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 10-10,000 ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 10,000 ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ 40 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 40,000 ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋੜੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 40,000 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਬਜਟ ਹੈਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਮੰਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ 40,000 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਲਓਗੇ। 40,000 ਚੋਂ ਫਿਰ 10,000 ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕਈ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸਟਮਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡ, ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲ ਪਵਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲ ਪਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰਾ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ 1,47,000 ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 1,47,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ 20,000 ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 50,000 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ RE ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ EMI ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰੋ। देखो सेटलमेंट EMI तो भली तरह जानते हैं,
और अम्बे हाँ जी, कार्ड देखो के कार्ड के मैं मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ बात सुनिए, ये फायदे जो ਦੱਸਦੀ तुझे ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ। आड़ी बोल रहे हो, आड़ी क्या होता है, आड़ी समझाना मेरे को। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60% ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਈ ਤੇ ਈਐਮਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ जो ਵਿੱਚੋਂ सेटल ਹੁੰਦੀ होता है वो तो मैडम प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, ठीक है। ਹੈ जी। प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, और क्रेडिट कार्ड में तो 70-75-80% तक भी होता है, 85 भी होता है, ठीक है। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਜਾਂ 64% ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 80% ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, 85 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਬੀਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਜਾਂ 64% ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं देती है मैडम, एसबीआई भी देती है, ऐसा नहीं है। देखो अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन देती है। हाँ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 100% ਮਿਲੇ। जी 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ 100 ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 120% ਦਵਾ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਨੇ ਚ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਰੀਬ ही है, कोई आजकल मैडम गरीब करके ही ये हाल हुआ है, गरीब करके। और पता है आगे देखो, मैं आपका ये कार्ड मेरा 6-7 साल पुराना है, हमेशा ड्यू डेट से पहले पेमेंट होती थी, तो बंदे के साथ आगे क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं चलता। मैं अभी आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता हूँ, आप पहले अपनी बात बताइए और बताना है तो। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ नहीं नहीं छड्डे नहीं रखेंगे, छड्डे नहीं रखेंगे। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹਨਾ। ਹੁਣ 5 ਮੰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 47,000 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ प्रिंसिपल अमाउंट है, इकट्ठा मेरे प्रिंसिपल। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 47,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡੀ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੱਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲ ਪਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਓਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਸਟਮਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਐਮਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। देखो मैडम, अब मैं बताऊं, मेरा पुराना कार्ड था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। और मैंने कई एसबीआई के इस कार्ड पे कई बार जम्बो लोन भी लिया, उसको भी प्रॉपर क्लोज किया, सारा कुछ करके। मीनवाइल अभी मेरा कोई उस पर लोन नहीं था, प्रिंसिपल जो यूज था वही था। इसके बाद मेरी पेमेंट हिस्ट्री इतनी अच्छी थी, मैंने बजाज के 5-5 लाख के ओडी पूरा एनओसी लेके क्लोज किया, आरबीएल का 2 लाख का कार्ड था उसका एनओसी लेके क्लोज किया, ठीक है। ये सारा थोड़े दिन पहले की बात है। इसके बाद मीनवाइल क्या हुआ, 4-5 महीने के दरमियान मेरी ना 2-3 महीने जॉब छूट गई, ठीक है। और मेरे पास 2 पीएल थे, 4-5 बैंकों के कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, उसके बाद कई और भी मेरे लोन थे पहले, कई सारा क्लियर भी किया था बैक हिस्ट्री में, ठीक है। और 10 साल से मैं बैंक का कस्टमर हूँ, कई बैंकों का कस्टमर हूँ, तो मैं सारा कुछ टाइम टू टाइम पे कर रहा था, ठीक है। इस बीच जब मेरी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, मीनवाइल मैं फिर 10-12 लाख के कर्जे में आ गया, ठीक है। वो एक को उतारने के चक्कर में दूसरा लिया, दूसरे को करने में तीसरा। मेरा कभी नहीं था कि चलो यार क्लियर कर लेंगे, बैंक से हमेशा बंदे को हेल्प मिलता है, ठीक है। तो इस बीच में 4-5 महीने से इतना हो गया कि किसी का पे नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर तुम लीगल की बात कर रहे हो तो मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि लीगल करके देखो ना तो आपको कुछ मिलेगा ना मेरे को मिलेगा, ठीक है। खिंचे जाएंगे, टाइम खिंचे जाएंगे, बाद में फिर वही आना है, ठीक है। तो और अपना ये भी अभी भी नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। पैसे मैं जरूर पे करूंगा, बट मेरे को लगेगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे मैंने जरूर पे करना। आपने बताया कि देखो अक्टूबर, आपने अभी अक्टूबर की बात करी, अक्टूबर मतलब अगले अक्टूबर। इतना लंबा मैं भी नहीं जाना चाहता, मैं भी अरेंजमेंट में लगा हूँ कि जितना जल्दी कहीं से पैसे पुसे हो,
कुछ अरेंज करके जो भी होता है हम कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो मैडम पता है देखो, ईएमआई मैं आपको बोल के करा लूँ, ईएमआई फिर नहीं जा पाए उसका कोई और फायदा नहीं। मैंने एक बार तो पहले ही मैं डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद फिर आप जो मेरे को सही रास्ता बताओ उसमें भी नहीं दे पाऊंगा, तो दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ओटीएस ही करूंगा, थोड़ा टाइम लेके मैं अरेंजमेंट में लगा हूँ, ओटीएस ही करूंगा। फिर जो आप लोग बेस्ट होंगे मैं ओटीएस ही करूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को मैसेज आया है, लोक अदालत का भी मैसेज आया है आपके एसबीआई से, ठीक है, 14 तारीख को जो है। तो लोक अदालत में अभी मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं है, तो मैं वहां जाके करना क्या, ठीक है। पैसे नहीं है, अगर पैसा रहता है तो वही जाके खत्म कर देता है, ठीक है। परेशान करने लग जाते हैं मैडम, परेशान तो बहुत आते हैं। अब आपके 10 दिन 15 दिन पहले आपके रिकवरी वाले का कॉल आया जी, आपके पास 4 लड़के भेज देंगे जी, आके खड़ा हो जाएगा, फिर आपको बताएगा क्या होता है कैसे होता है। तो ये तो रिकवरी का तरीका नहीं होता है ना। मैंने उनको भी यही बोला, सर मैंने पैसा लिया है, यूज किया है, मैं पैसे देना, लेकिन आप अगर इस तरीके से बोलोगे फिर तो कोई उसका फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको भी बोलता हूँ, आप लीगल से हो, ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आप ज्यादा समझदार तो हो ही, ठीक है। तो हमें भी पता है कि बैंक के पैसे लिए हैं, देने हैं, हमें अपने राइट भी पता है, लेकिन बैंक के पैसे यूज किया है, देना तो बिल्कुल है, ठीक है। मैं अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को और कोऑर्डिनेट करके टाइम दीजिए, जो भी होगा हम कराएंगे, कास्ट का कार्ड का जरूर कराएंगे, ठीक है। नहीं सर, आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं आपकी सेटल करवा देती हूँ, ठीक है। जो आपकी, मैं देखो सभी लोग कैसे करते हैं कि जो मिनिमम पेमेंट होती है वो माइनस नहीं होती, ठीक है, ये तो आपको मालूम नहीं होगा ना। देखो मैं आपको ऐसे कर देती हूँ, जो आपका एनपीए तो हो गया कार्ड ना, क्या मेरा कार्ड भी एनपीए में आ गया। नहीं सर, वो ब्लॉक हो जाता है ना, परमानेंटली तो नहीं होता, वो टेम्परेरी हो जाता है ब्लॉक। नहीं, जैसे 93 डेज के बाद जो एनपीए आता है वो भी आया नहीं, क्योंकि 3-4 महीने जैसे पेमेंट नहीं हो पाई है। तो मेरे और कार्ड में तो बैंक वालों ने फंडिंग कर दिया, रिकवरी वालों ने 3-4 कार्डों में, 3-4 कार्डों ने, मेरे रिकवरी वालों ने 3-4 कार्डों ने मेरे कार्डों में फंडिंग भी कर दिया बिना बताए एसबीआई में। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कुछ हुआ है, क्योंकि मैसेज आता है मेरे को। हाँ देखो सर, ऐदा हो सकता है कि जिद्दां ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ 54,000 ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ लांगे ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ 58,000 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। देखो पता है मैडम, अभी मेरे पास ईएमआई का भी पैसा है नहीं, ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, सेटलमेंट जब भी होता है ना, ये जो ईएमआई वाली सेटलमेंट होता है ना, इसका कोई वो नहीं होता है, ठीक है। वो बाद में कर जाते हैं, फिर बाद में बैंक वाले मुकर जाते हैं, ठीक है। नहीं देखो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ सेव कर लो ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ दिन रात कॉल करो, ਅਸੀਂ अटेंड करांगे। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। उसके बाद रहते हैं ओटीएस, तो ओटीएस है मैडम 60-70 हजार अभी कहाँ आएंगे मेरे पास पैसे। अगर इतना रहता तो मैं आपका ईएमआई ही नहीं रोकता, इतना मैं बैंक से गालियाँ खाता हूँ, इतना सुनता हूँ। अगर पैसे रहता तो मैं वो चीज करता ही नहीं, फिर मैं इसको खत्म ही करता। तो इसलिए आप मेरे को जो भी करना है, पेमेंट तक जो भी करना है, मेरे को थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट करके थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जो भी होता है मैं कराऊंगा। लेकिन जितना आप बोल रहे हो उतना तो मेरे पास होने में फिर अभी 1-2 साल लग जाएगा, क्योंकि एक नहीं है ना मैडम। नहीं सर, मैं तो कहीं नहीं रही ना कि 14,000 ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5400 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी, क्योंकि देखो अज मेरे को केस है, मैं अज तो 54,000 रुपया पेमेंट ले लांगी, ठीक है। मैं वो कैंसल करवाऊंगी, उस तो बाद फिर मैं आपके जो कोई भी कहता पेमेंट करो तो जी मेरा सैटल हो गया, मेरी हरमन मैडम नाल गल हो गई सी, बस कोई फोन भी नहीं करूगा कि तू पेमेंट कातों नहीं कर रहा। जितने केस लीगल दे आंदे आ साडे कोल ही आंदे ने सर। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैडम, ठीक है जी। लेकिन मैं देखो 5400 सर मेरे अकॉर्डिंग, देखो चलो मैं मानदी हां कि सब दे घरे प्रॉब्लम हुंदी है, पर मेरे अकॉर्डिंग जे तुसीं 5400 रुपया भर दोगे ना, मैं बैठी हां, तुहानूं कोई लीगल च भी नहीं सद्दूगा,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ कि मैं नहीं भरना, तो मैं तो तिगड़े नहीं मैडम, जो एजेंसी वाले मेरे को गालियाँ देते हैं उसको मैं ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि पैसे देना है पैसे। मैं थोड़ी प्रॉब्लम ही जो समझ गई ना, वेरी क्लोज होके मैं थोड़ी प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं। जब कोरोना आई थी ना उस टाइम में मैं 4-5 महीना बैठा रहा, लेकिन फिर भी पैसे था, मैंने सभी कार्ड को सभी लोन को चलाते रहा, ना तो किसी से कोई मॉनिटोरियम कराया ना कुछ कराया, लेकिन टाइम टू टाइम सबको देते गया। ठीक है, इस बीच में इस तरह से आगे मैं इस तरह फंस जाऊंगा। देखो कि तुसी देखो मेरी गल तो सुनो ना, तुसी समझने की कोशिश करो। देखो इस बार तुसी मेरे 5400 रुपया पेमेंट कर रहे हो, मैं तुहानू खुद अपनी जवान तो कह रही हूँ कि मैं तुहानू खुद 4 महीने दिन्नी आ, कोई पेमेंट करन दी लोड़ नहीं। मैं लीगल प्रोसैस चो, मैं कोई थर्ड पार्टी या बैंक चो कोई मैनेजर नहीं गल कर रही, मैं लीगल प्रोसैस चो एज अ सुपरवाइजर गल कर रही हूँ, जिन्हां कोलों केस हुंदे आ। जे तुसी लीगल च भी जाओगे उत्थे भी तुहानू मैं ही मिलना आ। जे मैं कह रही हूँ कि खज्जल नहीं होना, ये चीज़ां नहीं सर डील करनियां पैणियां, मेरे सिर ते बैठो तुसीं ऐश नाल कि 5400 पेमेंट करके उस तो बाद तुसीं जिथे मर्जी फिरो, तुहानू जे कोई कह भी गया ना कि तेरी पेमेंट आ, मेरा नाम बदली कर दिओ। मैडम मैं लीगल चो गल कर रही हूँ, मैं कोई वो पर्सन नहीं हैगा सर कि मैं देखो मैं इन्ना समझावां, इन्ना वो करां, डील करां। मैं तुहानू ये भी कह रही हूँ कि 4 महीने मैं तुहानू दित्ते आ, चाहे तुसीं सारी पेमेंट अरेंज कर लो, चाहे तुसीं 2 पेमेंट अरेंज करके रख लो, 4 महीने तुहानू मैं दे रही हूँ। होर दसो मैं की कर देवां? नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं पेमेंट कोशिश करता हूँ धीरे धीरे करके मैं अरेंज करता हूँ। आज थोड़ी लास्ट डेट है, देखो थोड़ी लास्ट डेट है, ठीक है जी। क्यों लास्ट डेट है? देखो गल मेरी कल भी थोड़े नाल हो जानी सी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी सीगी तां करके मैं ड्यूटी तो थोड़ा ऑफ लिया होया सीगा, ठीक है जी। मेरे बहुत कस्टमर फस गए नेगे ते हुण उन्होंने लीगल भी जो मैनू मिलना ना, तो उन्होंने यही कहना कि मैम तुसीं मैनू फोन नहीं सी करिया, ये नहीं वो नहीं, है ना, सेम चीज़ हुंदी आ। पर मैं तुहानू देख लो फिर भी टाइम जाके फोन कर रही हूँ। देखो तुहाडे कोल हले सारा दिन पिया, 4 बजे तक जे तुसीं 5400 भी अरेंज कर सकते हो तो मैनू दस दो, मैं उस हिसाब की मेल पा के 4 महीने का टाइम लैके भी तुहानू दे दांगी कि हाँ ये चीज़ एवें है, ये चीज़ एवें है। नहीं मैडम, इतना जल्दी मैडम 5400 नहीं अरेंज हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा कंडीशन ऐसा नहीं है 5400 तुरंत अरेंज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, फिर आप जैसे भी बोलेंगे जो भी। देखो पता है अब मैं हो गया मैडम स्टक, मैं 10-12 लाख के कर्जे में आ गया, तो मैं तो आपको क्लियर ही बताता हूँ कि अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी बेस्ट जहाँ से जो मिलेगा मैं कराऊंगा, जैसे आप बोल रही हो तो हम कराएंगे सेटलमेंट या जो भी हो कराएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, ठीक है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। अगर जी कितनी तारीख तक को 5400 दे दोगे? श्योरिटी बता दो आप, कितनी तारीख को दे दोगे मुझे? मैडम अभी पॉसिबल है नहीं 5400, ठीक है। 2 दिन को, 4 दिन को? नहीं मैडम अभी इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी पैसे का कोई है नहीं, ठीक है। बट मैं कराऊंगा, मैं लगा हूँ। देखो मैं ऑलरेडी कहीं न कहीं से ट्राई में ही लगा हूँ कि पैसे आए मेरे पास, मैं करके सभी का कुछ करूँ, ठीक है। मैं उसी सिचुएशन में लगा हुआ हूँ, ठीक है। बट कंडीशन ही कुछ ऐसा है, आप बोलते हो, मैं तो घर वालों से भी गालियाँ सुनता हूँ कि आपने मतलब क्यों इस तरह से कैसे फंसे, लेकिन क्या करेंगे, बंदे को पता नहीं चलता, ठीक है। और एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में था बहुत तरह का लॉसेज हो गया, शेयर मार्केट में कुछ लॉसेज हो गया, कुछ इस तरह का हुआ, कुछ बीमारियों में चला गया, इन सब चीज़ से। लेकिन फिर भी मेरे पास जब तक पैसे थे ना, मैं निकालता गया। देखो अपना जो कार्ड है, अपना जो SBI कार्ड है, देखो ना, मेरे हिसाब से 17-18 का कार्ड है, वो 2016-17 से मेरे पास चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं बेस्ट कराऊंगा, पेमेंट को मैं अभी मना नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट कराऊंगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए, कराऊंगा पेमेंट, ठीक है। तो सर फिर मेरे पास तो केस नहीं ना रहना है उसके बाद, तो फिर मेरे साथ से केस निकल जाएगा। मैडम आपके पास, आप इतने सीनियर बोल रही हो, मैं आपका रिगार्ड करता हूँ कि आपके कहने के हिसाब से मैं नहीं कर पाया। लीगल प्रोसेस का भी ना कोई टाइम होता है, किसी पर्सन के साथ होता है, ऐसे थोड़ी है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा कि हाँ मैं बैठता हूँ लीगल में, मैं बैठता हूँ ना। कोई टाइम होता है लीगल के, कोई केस होते हैं, उसी हिसाब से हमको जाना पड़ता है। ये थोड़ी है कि आज मेरे 10 दिन से भी मेरे पास ही रहेगा। आपको गुड नेम क्या हो गया? हरमन? हाँ जी हरमन। अच्छा, मैं आपका नंबर सेव करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फर्दर होगा तो मैं कुछ बात करूंगा आपसे, ठीक है। कोई बात लेकिन पेमेंट मैं जरूर करूंगा। लगे ना कि हाँ पेमेंट आज हो भी रही है ना, तो फिर भी मुझे कॉल कर देना जी। आज होगी, धक्के से किसी से लेके या इधर उधर से लेके जी हो रही है, तो मुझे कॉल जरूर कर देना 4 बजे से पहले, ठीक है।
ठीक ठीक। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।